सो आप में से किसने जेन सी के बारे में पहले कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ सुना हुआ है, कुछ पता हो? जी। So you're talking about generative AI, basically, yes. Gen C is basically a framework that enables generative AI. आप में से कितने लोग generative AI applications पे काम कर चुके हैं? So any one of you can volunteer किस type की application पे आपने काम किया है? Yeah, sure. आपको क्या challenges face आते हैं while creating this kind of application? ओके, ओके। सो आज जिस तरह की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मोर अबाउट हाउ टू एक्चुअली बिल्ड दैट सोल्यूशन अराउंड जनरेटिव एआई. And that's where Gen C comes in. Gen C is, like it says, an open source generative AI orchestration framework. When I say that, I mean that when you are creating a generative AI application, you can use Gen C as the foundation for it, and it enables you to actually access interoperability. It has a faster runtime, and it significantly reduces your development time, and we're going to see how that happens. But before we go into details about Gen C, uh, let me tell you who I am. इस पिक्चर में मेरी जॉ लाइन है, और जॉ लाइन कम क्यों हुई उसके रीजंस भी इसी स्लाइड में ही हैं. अच्छा. तो I'm an AI consultant. I specialize in generative AI, NLP, computer vision, and forecasting. So basically, ever since I've joined the company, Systems Limited, I've had the very fortunate luck of being involved in different sort of projects, which has given me a broader view of what the industry is like for AI. Um, the initiative that really kicked off generative AI for me was the Center of Excellence, for which I'm a pioneer, and we actually created an AI lab at the company as well. So this particular COE exposed me to different business problems in the industry. Like for example, आप insurance की बात करें, तो they face issues with claims filing, right? That is a very document heavy process. वहाँ पे manual work बहुत ज़्यादा involved होता है, and they have to go through a lot of documents to make decisions about who to give that compensation to or who not to give that compensation to. Similarly, healthcare is the domain that I'm currently working in, and I'll discuss it in a while. Um, so it says that I'm an expert in architecting scalable ML ops solutions. आप में से कोई ML ops या LLM ops में काम करता है? No. So for those of you who don't know, जब आप एक कोड का पीस लिख लेते हैं और फिर आपने उसको यूजर्स को देना होता है कि यार यूज़ करो मेरी एप्लीकेशन, उससे पहले द मॉडल्स हैव टू गो टू अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से वो यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल हो. अब इश्यूज क्या आते हैं कि आप एक एआई की एप्लीकेशन तो बना लेते हो, प्रोटोटाइपिंग इज़ वेरी इजी इन जनरेटिव एआई, बट द इशू कम्स जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो टू दैट मॉडल एंड देन उसका एक रिस्पॉन्स आता है. अब एक यूज़र के लिए तो चलो इट्स मैनेजेबल, बट व्हेन देयर हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन इंक्रीज होता है, एंड दैट्स व्हाट यू डू इन एम एल ऑप्स और एल एल एम ऑप्स. यू आर बेसिकली ट्राइंग टू मैनेज दैट and reduce the costs of the entire solution. So it says that currently I'm leading a cross-functional team of 6 data scientists for healthcare, and this is a healthcare startup by our company. Um, Basically, we deal with physicians directly. हम उनका documentation का burden कम करते हैं, and we basically आप अगर किसी डॉक्टर से बात कर रहे हो, वो conversation is converted into a clinical note directly. इस डॉक्यूमेंटेशन पे डॉक्टर्स को काफ़ी टाइम लगता है, एंड जनरेटिव एआई इज सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनाइजिंग दिस प्रोसेस, रिड्यूसिंग आवर्स of burden off of the doctor's plate. So, generative AI solutions.
an overview, and I'd like to thank Ali Arsanjani for his blog for this. It's a very detailed blog, and I encourage you guys to go and read about this. जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मली व्हेन वी स्टार्ट विद जनरेटिव एआई एप्लीकेशन, इट्स लाइक कि आपने एक एपीआई यूजुअली प्लग की, उससे आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहे हैं, या उसके साथ एक वेक्टर डीबी अटैच करके आपने एक डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी अटैच की, एंड देन दैट सोल्यूशन यूजुअली इज़ अ पीओसी सॉर्ट ऑफ थिंग. बट एज दैट सोल्यूशन सॉर्ट ऑफ ग्रोज, तो वो मल्टी एजेंटिक फ्रेमवर्क में भी ट्रांसफॉर्म होता है, एंड देयर आर nuances that get added with each step. सो वहाँ गवर्नेंस भी आती है, वहाँ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी आती है, एंड हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड इज शोन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. आप में से किसी ने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई हो जनरेटिव एआई की विच इज़ एक्चुअली डिप्लॉयड फॉर कस्टमर्स? यस. So in the technical debt in terms of scaling that sort of AI, how was that moving from POC to deployment? So um, there's a lot of fragmentation in the system. As you can see, a lot of moving components, UI, UX, the backend logic, databases, and everything. And that fragmentation is what basically Gen C is here to solve. So again, what is Gen C? Gen C is a framework that enables you to write code in one language and use it in another. Gen C is a framework that allows you to write code for one device and use it in another. It's essentially a tool aimed at allowing quick prototyping to development life cycles. It's fairly new. It's in its infancy. GitHub पे अगर आप देखेंगे तो it has around 57-ish stars, but that doesn't mean कि it's not relevant and it's not important. The reason I chose Gen C is because we need these tools in our development pipelines, as they reduce the technical burden a lot. Why Gen Z? इकोसिस्टम फ्रैगमेंटेशन की मैंने बात की. आप LLM जो हैं कहीं और ट्रेन करते हैं, उनकी चेन्स कहीं और बना रहे होते हैं कि समटाइम्स इवन द लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, समटाइम्स इवन दी पर्टिकुलर डिवाइसेस आर डिफरेंट. ठीक है, कुछ कोडिंग क्लाउड पे हो रही होती है, कुछ लोकली हो रही होती है, एंड स्टफ लाइक दैट. एवरीथिंग sometimes is in a siloed environment. So that siloed environment is basically what Gen C aims to solve. तो आपकी जो इकोसिस्टम फ्रैगमेंटेशन है, दैट इज़ बेसिकली कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट SDKs यूज़ कर रहे हो, मे बी आप लैंग चेन यूज़ कर रहे हो, साथ लामा इंडेक्स यूज़ कर रहे हो. एंड असेंशली होता ही है कि जब आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो डिपेंडेंसीज़ के भी इशूज़ आ रहे होते हैं. और इशू ये भी आता है कि फॉर एग्जांपल आप लैंग चेन में कोड लिखते हो और लामा इंडेक्स में कोड लिखते हो. अब नाउ समटाइम्स दे डोंट वर्क टुगेदर. एज एन ML ऑप्स पर्सन आपके पास क्या ऑप्शन होती है? द क्विक ऑप्शन इज़ कि आप दोनों के अलग सर्विसेज बना दो और एक साथ चला दो. बट दैट इज़ समटाइम्स नॉट द आइडियल थिंग, बिकॉज देन यू आर पुटिंग इन कॉस्ट, मोर रिसोर्सेज टू कीप दैट कोड अलाइव, राइट? So while we were working in the healthcare domain, that the startup that I'm talking about, हमें एक इशू ये आता था कि, और आता है भी अभी भी, कि we experiment on Colab notebooks, right? अब उस कोड को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है पाइथन फाइल्स में, फिर उसकी सर्विस बनती है, डिप्लॉय होता है, कंटेनराइजेशन एंड एवरीथिंग. इट्स अ लॉन्ग हैसल. अब अगर कोई क्लाइंट आके कहे कि यार मुझे 3 दिन के अंदर एक एप्लीकेशन, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना के दो जो मोबाइल पे चले, और उसका आइडियली गोल ये हो कि यार आपका एक LLM है, उसको कॉल जा रही है, उससे एक रिस्पॉन्स आ रहा है सिंपल. बट डू यू अंडरस्टैंड कि कितना टेक्निकल डेट इनकर होता है एक छोटे से टास्क पे जिसको आपने फ़ौरन डिप्लॉय करना है? सो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट Gen C एम्स टू रिजॉल्व. अब अगर आप देखेंगे कि हम मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर
अपना कोड रखते हैं. जुपिटर पाइथन नोटबुक्स हो गई, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हो गया, अदर प्लेटफॉर्म्स ऑन प्रेम एनवायरनमेंट्स, क्लाउड एनवायरनमेंट्स की बात करें. अब जेन सी इस तरह काम करता है कि एक फ्रंट एंड इंटरऑपरेबिलिटी एपीआईज होती हैं आपके पास. लेट्स से LangChain, करंटली LangChain लामा CPP एंड Gemini एपीआईज को ये सपोर्ट कर रहा है. तो इन एपीआईज को वो ट्रांसफॉर्म करता है इनटू एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन. आप में से लोग जो मे बी मेरे से ज़्यादा अच्छे प्रोग्रामर्स हैं उनको पता होगा कंपाइलेशन प्रोसेस का, किस तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होती हैं. आइडिया है कंपाइलेशन में क्या प्रोसेस होता है? सो असेंशली उसी आइडिया को थोड़ा सा उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है कि यू राइट द कोड इन वन लैंग्वेज, it's converted into an intermediate representation जो is usable across platforms, and then it runs on a C++ runtime, and then you have backend interoperable APIs जो मुख्तलिफ, for example LangChain is connected to OpenAI, it can use OpenAI, Google Gemini and everything. So this is the sort of secret recipe behind the curtain. Gen C is nothing but a glue framework जो हर चीज़ को जोड़ के रख रहा है, so that you don't have to do that additional work. इसके अंदर if I talk about the current state of Gen C, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि it's not yet in a very advanced form. It's in its infancy. So right now LangChain के साथ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, but ये है कि it does need open source contributors, people like you who can actually improve or evolve this. So the goal is to achieve a platform या framework जो multiple runtime support करे. So this runtime here, you can have your own runtime, you can have your own front end interoperability APIs, llama index हो गया, haystack हो गया, कुछ भी आप use कर सकें. And similarly कोई भी cloud service आप connect करके एक ही framework के अंदर रहते हुए इंटरऑपरेबिलिटी अचीव कर सकें. सो जैसे मैंने बताया पहले भी थोड़ा सा कि बेनिफिट्स इसके हैं कंपोजिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. आप ऐप का जो लॉजिक है आपको जहाँ पसंद है वहाँ लिखें और उसकी एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बना के पोर्ट कर लें. एंड वही बात ही नीचे पोर्टेबिलिटी में भी है कि इट्स अक्रॉस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तेज़ी से प्रोटोटाइपिंग की से प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं आप. एंड ऑन डिवाइस एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स. इस पे आई थिंक जब एग्जांपल आएगी तो यू गाइस विल बी बेटर एबल टू रिलेट विद इट. कस्टमाइजेबिलिटी की बात की जाए, हाँ, सो अब क्योंकि एक आपको फ्रेमवर्क दे दिया गया है कि किस तरह चीज़ें सेटअप हो सकती हैं इन अ पर्टिकुलर वे. सो जेन सी इज़ कि आप उसको इवॉल्व करके अपने कस्टम रन टाइम्स ऐड कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरीज़, अपनी सर्विसेज. आपको LangChain नहीं पसंद, आप कोई और चीज़ लाना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं. मिक्स एंड मैच कर सकते हैं चीज़ों को. सो इट्स अबाउट ब्रिंगिंग sort of a unity between different siloed frameworks and technologies. Development velocity, obviously जब आपके पास एक ही framework है जिसमें आपको सारा काम करना पड़ रहा है, and you don't have to move from one device to another, one programming language to another again and again, so that is significantly improved. Performance and security, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है faster and more secure C++ runtime. Faster से तो मैं agree करता हूँ, secure से कितने लोग करते हैं? Does anybody know why C++ is secure or not secure? Anybody? Yes. C is a dangerous language. It's a dangerous language. But फ़ायदा क्या है बाकी languages में? Secure किस context में secure हो सकती है? C++ आपको granularity देता है जो बाकी languages शायद इतनी नहीं देती, because they are sort of wrappers over other languages or wrappers over other sort of representations. So इसमें जो granularity है, that gives you access to that level of code जिसको आप improve करके ज़्यादा secure कर सकते हैं. You know what's happening under the hood. So that is one aspect of the secure, why it's saying secure C++ runtime, because the first time I read it in a blog, or I was like, yeah, C++ or secure. So that is the reason.
Oh, it's saying that an asynchronous programming model है, application logic can be statically analyzed, verified, optimized, and executed on scalable distributed platforms. Hmm, अच्छा, अब coding वाली तरफ. Setting up this report takes around 15 to 20 minutes. So in the interest of time, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को दिखाने के लिए इधर स्लाइड्स में डाल दी है. किसी को पता है कि मॉडल कैस्केडिंग क्या होती है? जो लोग एआई में काम करते हैं स्पेशली, कॉन्सेप्ट नहीं है? यस, सॉर्ट ऑफ. सो मुझे आप एक चीज़ बताएं, आप में से जिन लोगों ने एप्लीकेशन डिप्लॉय भी की है, अगर आप एक एलएलएम को कॉल भेजो और वो आपकी कॉल का रिस्पॉन्स ना दे तो आप क्या करते हो? फॉल बैक क्या होता है? रीराउट हो जाए. यस. सो रीराउटिंग इज़ कि आप मे बी वन क्लाउड सर्विस से एक और क्लाउड सर्विस पे मूव कर रहे हो. मॉडल कैस्केडिंग के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर लेट्स से दैट लोकल पीस ऑफ हार्डवेयर जहाँ आपका कोड रन कर रहा है, वहाँ आप कोई मॉडल डिप्लॉय कर सकते हैं एंड यूज़ इट, और उसको बैकअप के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट. सो असेंशली इस एग्जांपल में ये हो रहा है कि आपके पास एक क्लाउड मॉडल है एंड यू हैव एन ऑन डिवाइस मॉडल. जब क्लाउड मॉडल फेल करेगा तो ऑन डिवाइस मॉडल विल टेक ओवर. एंड हाउ कैन दैट बी डन विद जेन सी? दैट्स व्हाट द एग्जांपल इज अबाउट. सो शुरू में जो ये वाला कोड तो उन लोगों को फेमिलियर होगा जिन्होंने लैंगचेन के साथ काम किया है. कोई बता सकता है इसमें हो क्या रहा है? फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड. ये पीछे किसी ने सही कहा है एलएलएम को. सो दिस इज एसेंशियली जस्ट अ प्रॉम्प्ट. कह लें इट्स बॉयलर प्लेट कि आपने एक एलएलएम को जो प्रॉम्प्ट भेजना है उसका टेम्पलेट सेट कर दिया कि टेल मी अबाउट एक्स वाई जी टॉपिक. टॉपिक एज इनपुट वेरिएबल जाएगा इसको, और आपने एलएलएम जो आप पर्टिकुलरली इस चेन को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करेंगे उसको फंक्शन के पैरामीटर में पास करा देंगे. अब आगे आपका क्लाउड मॉडल. क्लाउड मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं हमारा ट्रस्टी जेमिनाई. जेमिनाई किस किस ने यूज़ किया? किस किस को पसंद है जेमिनाई? जेमिनाई की क्या अच्छी बात है? कॉन्टेक्स्ट लेंथ. सो यहाँ किसी ने कहा फ्री है. ये सबसे ज़रूरी चीज़ है. अच्छा, आप अपनी API की जो आपको गूगल AI स्टूडियो से मिलेगी वो यहाँ एंटर कर देंगे एंड देन यूल हैव एक्सेस टू गूगल्स रिपोजिटरी ऑफ LLMs. यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं जेमिनाई. अब जेमिनाई जो है वो हम बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर क्या कहते हैं लैंगचेन कस्टम मॉडल का जो इनिशिएटर है उस इनिशलाइज करा लेंगे. उसकी एक कॉन्फ़िग बन जाएगी एंड देन द नेक्स्ट थिंग वी गोना डू, हमारे पास एक मॉडल आ गया. ठीक है, हमारे पास मॉडल आ गया और हमारे पास चेन आ गई है जिससे हमने कॉल भेजनी है उस मॉडल को. सो हम ये करेंगे कि उस चेन को ऐड कर देंगे जेन सी पाइथन इंटरऑप LangChain create computation my chain. बेसिकली ये आपकी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बना रहा है. इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यहाँ नज़र नहीं आ रही बट इट्स एसेंशियली अ डिक्शनरी. if I can zoom in. I think it's not allowing us to zoom in. Okay, so इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज़ बेसिकली जो आपने लॉजिक डिफ़ाइन किया है, जो मॉडल डिफ़ाइन किया है, उसको एक ऐसी मिडल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर रहा है जो अंडरस्टैंडेबल बाय जेनसी फ्रेमवर्क है. अब होता क्या है, अब इसकी एग्जांपल क्या दें आपको.
हम्म, ठीक है, मेरा एक दोस्त है जिसको चाइनीज़ भी आती है और उसको उर्दू भी आती है, ठीक है, मुझे सिर्फ उर्दू आती है और मैंने बात करनी है चाइनीज़ बंदे से। अब मैं जब उर्दू में बात करूँगा अपने दोस्त से, तो उसकी एक इंटरप्रिटेशन होगी जहन में कि यार इसने ये कॉन्टेक्स्ट ये बात की है। अब वो कन्वे करनी है जिस बंदे को चाइनीज़ आती है, ही विल कन्वर्ट इट टू चाइनीज़ एंड देन स्पीक टू दैट पर्सन। ही इज़ द इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर। उसके जेन में जो एक एसेंस आ रहा है ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज़ द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। सो इसमें कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्विटी हो? यस। अच्छा, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्रामिंग लॉजिक। embedding जो होता है that is a representation of the features of the documents that you want to feed to an LLM. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट है, उसका कंटेंट भेजना है LLM को, so just so I can search through that content, I'll create those embeddings and store them in a vector DB. यहाँ ये है कि मैंने एक एप्लीकेशन का लॉजिक लिखा है, मैंने कोलैब पे बैठ के कोड लिख दिया, ठीक है, मुझे क्लाइंट ने कहा है कि यार इस कोड को तुमने डिप्लॉय करना है एक मोबाइल डिवाइस पे, ठीक है। अब मैं अपनी एक्सपेरिमेंटेशन कोलैब में कर रहा हूँ। अब उस जो प्रोग्राम लैंग्वेज है, यहाँ तो जावा में या कॉटलिन के अंदर जो है मुझे लिखनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी ताकि ये वाला लॉजिक उधर चल सके। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ये कर रही है कि वो सारा जो प्रोग्रामिंग लॉजिक मैं इधर लिख रहा हूँ इन पाइथन, इट्स कन्वर्टिंग इट इनटू समथिंग दैट आई कैन एक्चुअली यूज इन द मोबाइल प्लेटफॉर्म एज वेल थ्रू जेनसी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, अब हम एक रन टाइम क्रिएट कर लेंगे। दिस इज़ एक्चुअली द C++ रन टाइम। सो अब आपने जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाई है उसके अगेंस्ट पाइथन और C++ के दरमियान कुछ बाइंडिंग्स होती हैं which allow you to actually access the C++ functionalities. यहाँ भी ये हो रहा है कि वो रन टाइम बन रहा है which against your Python code will actually run the C++ representation of that code. And वो ट्रांसलेशन के लिए जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। सो अब ये स्कूबा डाइविंग क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये तो इसका क्या ताल्लुक है? आई जस्ट वांट टू सी इफ यू गाइस आर पेइंग अटेंशन। ये कहाँ जाएगा, ये स्कूबा डाइविंग कहाँ जाएगा? गुड, जाग रहे हैं सारे, सिर्फ मैं ही सोने लगा था। अच्छा, सो डिफाइन ऑन डिवाइस मॉडल। अब हमने एक मॉडल डिफाइन किया जो क्लाउड का था, ठीक है। अब ये दूसरा मॉडल है जो ऑन डिवाइस चलेगा। ये मॉडल का पाथ हमने दे दिया, मॉडल डाउनलोड कर लिया हमने, ये क्वांटाइज मॉडल है। किसी को पता है क्वांटाइजेशन क्या होती है? जी, क्यों करते हैं? इसकी कॉस्ट क्या होती है? एक्यूरेसी किसने कहा है? गुड। सो जब हम किसी मॉडल को क्वांटाइज कर देते हैं तो वो छोटा तो हो जाता है, बट उस छोटे होने की कॉस्ट ये होती है कि वो एक्यूरेट नहीं रहता। अब ये GGUF फॉर्मेट में है। GGUF फॉर्मेट का किसी को आइडिया है क्या होता है? GGUF या GGML दो फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें आप मॉडल्स को स्टोर करा सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर्मेट वेयर यू कैन save your model. GGUF is the new one, an improvement over the GGML format. So ये हमने ऑन डिवाइस मॉडल लोड करवाया थ्रू जेनसी, पाइथन, इंटरऑप, लैंगचेन, कस्टम मॉडल, सेम जो आपने इनिशियलाइजर पहले देखा था, बट नाउ वी आर जस्ट गिविंग इट द मॉडल पाथ एंड essentially it will load the model that will run on your device, on your mobile device. So ये क्लाउड की कंप्यूट नहीं कंज्यूम करेगा, ये आपके मोबाइल की कंप्यूट कंज्यूम करेगा। मॉडल कैस्केड, अब ये वही वाली चीज़ आई कि आपने दोनों मॉडल्स को एक साथ कर दिया। जेन सी, पाइथन, इंटरऑप, मॉडल कैस्केड का फंक्शन है,
इनिशियलाइज़र है, मॉडल आपने दे दिए लिस्ट में माई क्लाउड मॉडल एंड देन माई ऑन डिवाइस मॉडल। क्लाउड मॉडल आ गया, ऑन डिवाइस आ गया। अब इसमें होगा ये कि आपने जो ये कैस्केड बनाया, दैट विल बी योर चेन नाउ, ठीक है। ये एज चेन पास होगा, इस पे कंप्यूटेशन क्रिएट होगी, इसकी एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ आप रन टाइम स्पेसिफाई करके, जो सी प्लस प्लस का रन टाइम हम जिक्र कर रहे थे शुरू में, तो व्हाट विल हैपन नाउ व्हेन आई से के स्कूबा डाइविंग, व्हेन आई पास दैट टू माय रनर, होगा ये कि ये पहले जाएगा मेरे क्लाउड मॉडल के पास। अब क्लाउड मॉडल से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया या इंटरनेट नहीं चल रहा मोबाइल का, द नेक्स्ट थिंग वुड बी के आपका लोकली जो मॉडल है वो कॉल हो जाएगा और उसका आपके पास रिस्पांस आ जाएगा। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ फेल सेफ इंस्टेड इन द सिचुएशन जहाँ आपका एक मॉडल API के थ्रू नहीं चल सका, ऑन डिवाइस रिसोर्सेज के साथ चलेगा। यहाँ कॉस्ट होगी एक्यूरेसी। आप जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है उसे सीरियलाइज करके एज अ प्रोटोबफ फाइल स्टोर करा सकते हैं। प्रोटोबफ इज अ गूगल फॉर्मेट, यस फॉर्म। Python is, you're right, but Python is not a sort of क्या कह लें wrapper around Gen AI based technologies, right? कर वो भी सेम चीज़ रहा है, बट मसला ये है कि हमने टेक्निकल डेट कम करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। तो टेक्निकल डेट कम करनी है तो फिर ये यूज़ कर लें। तो आपने एज अ फाइल सेव करा लिया प्रोटोबफ फॉर्मेट में, अब उसको आपने जावा में यूज़ करना है। जावा के अंदर आपने फाइल रीड करा ली, IR फाइल, एग्जीक्यूटर इनिशियलाइज कराया और रन कर दिया रनर विद दैट स्कूबा डाइविंग। ये args1 मीन्स के आप पास करा रहे हैं थ्रू सम इनपुट दैट स्कूबा डाइविंग थिंग, और ये उसका रिजल्ट आ जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ क्विक एंड ईजी वे कि आपने कोड लिखा कोलैब में, अब आपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज़ करना है। जस्ट यूज़ द IR फाइल, उसको उधर इम्पोर्ट किया, just use the pre-built logic that Gency gives you, use it, and then you have your working deployment. आपको इसके in detail tutorial, because Gency is not just for this one particular use case, it has multiple use case including confidential computing. So you should go to these tutorials. इनकी एक Docker environment भी है, you can set it up fairly easily. It will take you some time, but once set, you can run all of these tutorials and you can benefit from Gency. So guys, जैसे मैंने कहा आपको इतनी अच्छी चीज़ जो है वो थोड़ा सा इग्नोर हो रही है। 54 स्टार्स हैं इसके, तो आप लोग द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट AI के फ्यूचर अगर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे एज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स, उसके दो फ़ायदे होंगे। एक, यू विल बी द पायनियर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर framework. आप लोग स्टार्ट कर रहे होंगे दैट व्हील दैट विल इनिशिएट दिस सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज एवोल्यूशन। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जो बैठ के टेक्निकल डेट इनकर कर रहे होते हैं वो नहीं करेंगे। सो एनी क्वेश्चन गाइस? अभी इसके लिए सपोर्ट ऐड हो रहा है फ़िलहाल, अभी के लिए बेसिक यही इनका है, जावा टू पाइथन, बट एज इट ग्रोज इसके अंदर और इंटीग्रेशन होंगे। आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप देयर वर्किंग ऑन इज जावास्क्रिप्ट। यस, उसका ये है कि जो IR फाइल है ना, उसको तो आप ऑब्वियसली ट्रांसफ़र करके यूज़ करेंगे, वो ही तो मेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट लॉजिक दैट यू आर गोइंग टू यूज़। Gency दोनों पे ऑब्वियसली उसका सपोर्ट होगा, एंड देन दैट विल अलाउ यू टू यूज़ दैट पर्टिकुलर लॉजिक दैट यू रिटन। लॉजिक के अंदर जो मॉडल आप यूज़ करें, ऑब्वियसली इफ़ इट्स द ऑन डिवाइस मॉडल, तो मॉडल को भी कॉपी करना पड़ेगा।
उसका आपने एक जेनेरिक पाथ दिया है ना, उसे कि इस फोल्डर से उठा लो, तो बस वो सिर्फ लॉजिक की इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर करा रहा है, ठीक है। सॉरी, जेन सी इन इट्स करंट स्टेट जो मैंने आपको यूज़ केस दिखाया उसमें काम करेगा ऐसे ही, बट वही बात है कि बिकॉज इट्स फेयरली न्यू, इट हैज़ 54 स्टार्स राइट, तो अभी देर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड एवोल्यूशन। सो वंस वी डू हैव दैट फाइनल फॉर्म ऑफ जेन सी, तो गोल यही है कि यू राइट कोड इन वन लैंग्वेज या वन पर्टिकुलर फॉर वन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, और वो आप आराम से यूज़ कर लें अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। यस, वो लो असल में मॉडल कैस्केडिंग इस कॉन्टेक्स्ट में दिखाई है कि अगर आपका जेमिनाई का मॉडल नहीं काम किया ना, जो आप एपीआई के थ्रू या क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो फॉल बैक के लिए आपके पास ऑन डिवाइस मॉडल होगा जो कि क्वांटाइज मॉडल है, तो वो छोटा होगा बट वो एक्यूरेसी पे आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। दिस इज़ जस्ट वन सिनारियो, मतलब इसमें मल्टीपल सिनारियोज हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ मॉडल्स को कैस्केड कर सकते हैं। एज इट ग्रोज आपके पास और प्रोवाइडर्स के मॉडल्स आ सकते हैं अदर देन गूगल और ओपन एआई और एंथ्रोपिक, तो वो इस तरह मतलब एक आप इसको ऐसे सोचें कि यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क विद डिफरेंट मॉडल्स और सेंड योर क्वेरी टू डिफरेंट मॉडल्स वंस दिस इज इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। हम्म। हम्म। जहाँ पे आपको एडिशनल कोड नहीं लिखना पड़ता इस फंक्शनैलिटी को इनेबल करने के लिए, वहाँ तो योर मेथड इज़ एक्यूरेट के यहाँ से सेम कोड उठाया दूसरी चीज़ पे चला दिया, चल गया। मसला वहाँ आता है व्हेन यू आर राइटिंग दैट लॉजिक इन वन सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन वन सॉर्ट ऑफ फॉर वन सॉर्ट ऑफ डिवाइस, ठीक है, एंड देन यू पोर्ट इट टू अनदर डिवाइस या टू अनदर इन्वायरमेंट या अनदर लैंग्वेज, वहाँ इशू आएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंक्रीज द डेवलपमेंट डेट और टाइम, एंड दैट इज़ what Gen C is aiming to reduce, कि आपको एक अच्छे रन टाइम के साथ, यानी कि मोस्टली सॉल्यूशंस जो इंटरऑपरेबिलिटी ऑफर करते हैं ना, उसमें देर इज सम सॉर्ट ऑफ मिडल वेयर और लेयर, जिसकी वजह से लेटेंसी भी आ जाती है, स्लो डाउन भी हो जाती हैं चीज़ें। आप मूव तो कर जाते हो दूसरे प्लेटफॉर्म पे या दूसरी चीज़ पे, बट यू हैव टू डू इट एट अ कॉस्ट ऑफ स्लोइंग डाउन और essentially नर्फिंग योर एप्लीकेशन। सो अब वो जेन सी का मकसद ये है कि आपको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दे दे कि यार हम हमारा डीएनए यूज़ करो और अपने मॉडल्स को डिप्लॉय कर लो। जी। सिंगल लाइन ऑफ कोड तो लिख लें यार। सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं हमें तंग करती। असल में मसला ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको जेंसी को ऐसे ना देखें कि जेंसी इज़ ट्राइंग टू सॉल्व समथिंग दैट इज़ वेरी न्यू। जेंसी इज़ ट्राइंग टू merge everything or merge that technical rigor into one thing, कि यार आपको जब बैठ के सी शार्प की बाइंडिंग्स लिखनी पड़ेंगी फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पाइथन से आपने सी शार्प में रन करना है लेट से, उसके लिए आप कोड लिखोगे सारा, वो एक जगह आ जाएगा। you'll just have to call one line of code and then you can run it। आपके पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होगी और एक रन टाइम भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कि यार स्लो डाउन भी ना हो। सो दिस इज़ द गोल कि आपका जो डेवलपमेंट में टाइम ज़ाया हो रहा है, एक तो वो कम हो विद द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इवन इन सम केसेस बेटर, बिकॉज अंडरलाइंग लेवल पे जो कोड यूज़ हो रहा है या रन टाइम यूज़ हो रहा है वो लो लेवल है, लो लेवल लैंग्वेज का है।
So ये that is the essential क्या कहने the crux of it. ONNX तो मॉडल्स की उसके लिए होता है ना. हाँ, yes. This is just to port that infrastructure. यस, ऑब्वियसली. वो तो ऐसे है ना कि अगर आपने एक मॉडल ट्रेन कराया और उसको एक पिकल फाइल में लेट से स्टोर करा लिया, अब आपने वेट्स अपडेट हुए हैं तो उसको दोबारा चेंज तो करेंगे आप. तो ये सिम गोस फॉर आईआर फाइल. जब आपने वो सीक्वेंस ऑफ कोड चेंज किया है या सीक्वेंस ऑफ मॉडल चेंज किया है, यू विल हैव टू जनरेट द न्यू आईआर फाइल ताकि वो आगे कम्युनिकेट हो. सो आई थिंक थैंक यू एवरीवन फॉर योर इंटरेस्ट एंड आई होप यू यूज जेंसी.